Hello friends, welcome back. Let's start with new unit, analogy test. What do you mean by analogy? Analogy means comparison between two things or objects to show similarity. So it sounds like figure of speech simile. Yeah, it sounds like simile. So it shows comparison. So comparison may be based on various possibilities. So there are four basic types of analogy, like alphabet analogy. So it will be based on alphabet A to Z, Z to A, and their positional values. Then there will be number analogy, where you must know prime numbers, squares, multiplication, cubes, divisibility test. Mixed analogy. So of course it will be mixture of numbers, alphabet, words, and of course word analogy itself. For word analogy, you must be generally aware. So it based on general knowledge and awareness. So one by one discuss करते हैं. Alphabet analogy. Look at the example. Complete the second pair in the same way as first pair. Complete the second pair as in the first. So हमें ये compare करनी on the basis of this. So क्या है logic यहाँ पे? So 14, 15. Clear है? 14, 15. So 20, 21. So U आना चाहिए. So आप बोलोगे सर यू दो जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये या तो सी वे से आंसर आएगा. H 8 7 मतलब -1 किया है. सो 12 -1 11 11 मतलब के यू के. वन मोर 16 17. सो +1 है. सो J 10 है तो और 11 वाला के. सो यू के यू के गॉट इट. हाँ. सो क्या फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था यहाँ पे? +1 -1 +1 +1 -1 +1. So इस basis पे +1 -1 +1. So we got the letters U, K, K. So ये रही analogy. Whatever analogy is used for this pair, the same analogy is used for this pair. Complete the second pair in the same way as first pair. So neurotic. So how neurotic is written? These first three letters are placed at the end. Clear है? These last three letters in the beginning and middle one as it is. So it means that PSY at the end, TIC in the beginning, CHO in the middle. PSY at the end. आप बोलोगे सर PSY हर जगह पे. सो मिडल में देखो CHO कहाँ पे. सो मिडल में CHO सिर्फ एक ही जगह पे. सो PSY at the end, TIC in the beginning, CHO in the middle. So we got the analogy that this is our answer. Clear? नंबर एनालॉजी. सो नंबर के लिए मैंने पहले कहा डिविजिबिलिटी टेस्ट, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब्स. सो ये सब पता होना चाहिए. सो 36 18 40 is to what? सो आप बोलोगे सर 36 को हाफ करके मतलब आपको डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज कमिंग 18. सो डिवाइडेड बाय 2 एनालॉजी कहती कि यहाँ पे 20 आना चाहिए. यस, ऑप्शन में दिया है 20. गेटिंग इट? वन मोर एग्जांपल. 11 is to 121. सो कौन सी पेयर आएगी? सो हमें पूरी पेयर अभी कंपेयर करनी. 11 is to 121. क्या रिलेशन है इन दोनों में? यस, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11. सो आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा दिया है? अब 6 का पेयर तो 36 है, ये पॉसिबल है. 8 का 64 है, 13 का 169 है, करेक्ट है. 15 का 225. सो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 13 169. So square of 13 is 169. So यहाँ पे square पे गए. Getting it? Mixed analogy. What will come in place of question mark? Question mark की जगह पे क्या आएगा? News 14 5 23 19. So paper is equal to what? Okay. So news 14 5 23 19.
ओके, पोजिशनल वैल्यू दी है. सो पेपर 16 1 16 5 18, 16 1 16 5 18. C option already given. Getting it? One more example. What will come in place of question mark? Time 7, 18, 14, 22. So clock is equal to what? So आप बोलोगे सर टाइम का तो 20 आता है, आई का तो 9 है, यहाँ पे तो 13 है, सो यहाँ पे 5 है. सो आप बोलोगे यस, 20 प्लस 7 27, 18 प्लस 9 27, 14 प्लस 13 27, 5 प्लस 22 27. मिल गया कुछ तरीका? यस, रिवर्स ऑर्डर में. सो सिंपल है, 3 12 15 3 11. सो 27 टोटल आने के लिए क्या मिलाना है? यस, 24. सो यहाँ पे ऑलरेडी जो है, सो नंबर उन्होंने रिवर्स पे दिया है. सो 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 24, 27 माइनस 12 15, 27 माइनस 15 12. शायद इतना ही काफी है. 24 15 12, 24 15 12 सफिशिएंट है, जैसे हमने किया था कहां पे? यस, एग्जैक्टली डिकोडिंग में. अगर हाफ भी डिकोड करते हो तो भी समझ में आता है. इन द सेम वे अगर आपको इनिशियली नंबर्स भी समझते हैं फिर भी आप कोड प्रिपेयर कर सकते हो. मिक्स्ड एनालॉजी का एग्जांपल, वन मोर. व्हाइट स्टैंड्स फॉर पीस, सो रेड स्टैंड्स फॉर रोजेस, hatred, cleanliness की violence. Of course, red symbolizes violence. If white symbolizes peace, red symbolizes violence. Choose the term that will replace the question mark. Question mark की जगह पे क्या आएगा? Scientist, laboratory, actor, what? सो सबसे पहले दिमाग चलाओ कि इन दोनों में रिलेशन क्या है. सो आपको समझ में आएगा, लैब इज द वर्किंग प्लेस ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वर्किंग प्लेस इज लैब. सो एक्टर की वर्किंग प्लेस स्टेज, गैलरी तो पेंटर की है. क्लियर? कसिनो तो हमारी नहीं, साइट पे. यस, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, तो सिविल इंजीनियर का वर्किंग प्लेस है साइट. हाँ, गैम्बलर कसिनो में जाएगा. सो कॉमन रिलेशनशिप. सो सबसे पहले एनालॉजी में आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस कंपैरिजन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ ये कॉमन रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉजी. चलो करते शुरुआत वन बाय वन. कंट्री रिलेशन टू कैपिटल मे बी करेंसी या मे बी कॉन्टिनेंट. आई हैव नॉट गिवन ऑप्शन बिकॉज जस्ट आई एम टेलिंग यू कि कौन से रिलेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सी कंपैरिजन आ सकती है. इंडिया, दिल्ली. सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी? यस, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका. सो आंसर आएगा हमारा ढाका. क्लियर है? सेकंड, जर्मनी इज टू बर्लिन. सो इटली इज टू व्हाट? सो बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी. सो इटली कैपिटल कौन सी? यस, रोम. रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, प्रोवर्ब आपने सुनोगी. सो इटली की कैपिटल है रोम. सो आंसर इज रोम. यूके पाउंड. सो क्या है? करेंसी है. यूके की करेंसी है पाउंड. सो रशिया की करेंसी कौन सी? यस, रूबेल. रशिया की करेंसी है रूबेल. इंडिया इज टू एशिया, फ्रांस इज टू व्हाट? सो ये कॉन्टिनेंट का रिलेशन है. इंडिया इज इन एशियन कॉन्टिनेंट, सो फ्रांस यूरोप. स्टेट कैपिटल या तो उस स्टेट की लैंग्वेज, स्टेट की कैपिटल या उस स्टेट की लैंग्वेज, इस तरह से भी एनालॉजी आ सकती है. बिहार की कैपिटल पटना. सो गोवा की, यस, पणजीम. सो लिखते वक्त पणजी लिखा जाता. सो बिहार पटना, गोवा पणजी. महाराष्ट्र मराठी, ओडिशा ओरिया. सो लैंग्वेज जैसे महाराष्ट्र की लैंग्वेज जैसे मराठी है, ओडिशा की ओरिया है.
यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल। तो हमारे जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उनकी कैपिटल, जैसे कि लद्दाख की लेह है, अंडमान निकोबार, यस, पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट एनालॉजी, क्वांटिटी एंड यूनिट टू मेजर दैट क्वांटिटी। जैसे कि पावर वैट में मेजर होता है, सो फोर्स न्यूटन, वॉल्यूम लीटर, प्रेशर पास्कल, प्रेशर का यूनिट है पास्कल। एनालॉजी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट कौन से मटेरियल से बना है, जैसे कि क्लॉथ इज मेड ऑफ फाइबर, रबर, लेटेक्स, रबर इज मेड ऑफ लेटेक्स। नेक्स्ट एनालॉजी, एनिमल, उसके मेल फीमेल्स या तो ऑफस्प्रिंग मतलब उनके किड्स, और उनके क्राइज मतलब साउंड्स, जैसे कि टाइगर कब, सो टाइगर का ऑफस्प्रिंग किड है कब। सो हॉर्स का क्या है, यस, कोल्ट, COLT, सो हॉर्स इज टू कोल्ट। गोट किड, शिप, लैम्ब। मॉन्क नन, मेल फीमेल, मॉन्क मेल है, नन फीमेल है। सो ड्रोन बी, यस, हनी बी वाला ड्रोन, और BWE, सो ड्रोन एंड फीमेल इज बी। माइस, यस, साउंड ऑफ द माइस इज स्क्विक। स्पैरो चर्प, एग्जैक्टली, सो स्पैरो का साउंड है चर्प। so, यहाँ पे क्राइज दिया है, यहाँ पे साउंड दिया है। और किसके ऊपर एनालॉजी आ सकती है, लुक एट द पॉसिबिलिटी। इंडिविजुअल्स, उनकी थिंग्स, ये तो क्लास, जैसे कि बटरफ्लाई कौन से क्लास में आता है, इंसेक्ट, सो वेल कौन से क्लास में आता है, मैमल, यस, वेल मैमल में आता है। बटरफ्लाई इंसेक्ट है, वेल मैमल्स में आता है। कप क्रॉकरी, कप का क्लास कौन सा है, क्रॉकरी। सो व्हेन वी से कप, कप कम्स अंडर द फैमिली ऑफ क्रॉकरी। कर्टन कम्स अंडर, नॉट अ फर्नीचर, ड्रेपरी, कर्टन कम्स अंडर ड्रेपरी। गेम्स एंड प्लेसेस ऑफ प्ले, गेम्स कहां पे खेले जाता है, जैसे कि बैडमिंटन प्लेड ऑन कोर्ट, रेसलिंग कहां पे खेली जाती है, कहां पे, एरेना, ARENA, सो बैडमिंटन ऑन द कोर्ट, रेसलिंग इन एरेना। और क्रिकेट, पिच नॉट अ ग्राउंड, फुटबॉल ऑन अ ग्राउंड, क्रिकेट इज ऑन द पिच। वर्कर और उनके टूल्स या तो वर्किंग प्लेसेस, जैसे कि शेफ नाइफ, सोल्जर गन, शेफ नाइफ, सोल्जर गन, टेलर नीडल। गार्डनर यूजेस कौन सा टूल, हैरो, सो फार्मर का टूल कौन सा माना जाता है, प्लो, PLOUGH, सो गार्डनर, हैरो, फार्मर, प्लो। वर्कर्स और उनके प्रोडक्ट, उनका आउटपुट, जैसे कि मेसन वॉल, मेसन वॉल बनाता है, पोएट पोएट्री बनाएगा। स्टडी और उनके टॉपिक्स, सो हार्ट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी, सो बॉडी फिजियोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी, उल्टा भी आ सकता है। पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉइल, सो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, इज द स्टडी ऑफ फंजाई। Fungus is a singular, fungi is the plural, not a fungi, it's a fungi. So soil का साइंस पेडोलॉजी है, so fungi का साइंस है माइकोलॉजी। These are study based questions. वर्ड्स और उनके इंटेंसिटी, सो कम इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी, ऐसे वर्ड्स है, जी हाँ, जैसे कि स्पीक और शाउट, बोलना और चिल्लाना फर्क है। सो स्पीक मतलब इंटेंसिटी कम है, शाउट मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है। इन द सेम वे रेफ्यूज में इंटेंसिटी कम है, उसने रेफ्यूज कर दिया है। डिनाई, डिनाई की इंटेंसिटी ज्यादा है, सो रेफ्यूज का रिलेशन आएगा डिनाई से। इसके केसेस देखते हैं, देयर आर 5 केसेस।
हर केस के 5 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं. सो आपकी एनोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी. इट विल बी इजी इन द एग्जाम टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनोलॉजी. सिंपल एनोलॉजी. सिंपल एनोलॉजी में क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सिंपली आने वाले. फर्स्ट क्वेश्चन, atom is related to molecule in the same way cell is related to. If you are a science student, you will solve it quickly. Yes, atom is a combination of molecules. Yeah, molecules is a combination of atom. Atom is a combination of molecules. So cell is, yes, organism combining. So ये question था on the basis of combination. Second देखो, sports is related to logo. Whenever वो sports are played, उनका लोगो डिजाइन होता है. इन द सेम वे हर नेशन का क्या होता है? एंथम नहीं होगा. एंथम तो सिंगिंग में चलेगी, वो सॉन्ग है. यस, एम्बलेम होता है. जैसे कि इंडिया का है अशोक स्तंभ. यस, एम्बलेम, अशोक पिलर. आर इज रिलेटेड टू सेकंड इन द सेम वे टर्शियरी इज रिलेटेड टू व्हाट? आप बोलोगे सर आर और सेकंड का रिलेशन क्या है? अगर आप देखते हो आर मिनट सेकंड, सो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी है. सो यही पे आंसर मिल गया. सर टर्शियरी दिया है, सो सेकंड टर्शियरी है, सो आर प्राइमरी है, सो आंसर आना चाहिए प्राइमरी. क्लियर? सो ये यूनिट्स है क्लॉक के, आर मिनट्स और सेकंड. फोर्थ एग्जांपल देखो, फायर इज रिलेटेड टू एशेस. सो व्हेन फायर टेकन प्लेस, whatever remains ashes. So whenever there is explosion, whatever remains, even अगर बिल्डिंग भी हम गिराते हैं, so whatever remains, that is called as, yes, debris. Last question इस केस का, king is related to throne. yes, राजा हमेशा थ्रोन पे बैठता है. सो जजेस कहाँ पे बैठता है? नॉर्मली लोग आंसर दे देते सर कोर्ट. नहीं, कोर्ट तो जहां पे जजिंग दी जाती है वो है. जज जहां पे बैठता है दैट इज कॉल्ड एज बेंच. यस, दैट इज कॉल्ड एज बेंच. सो हु सिट्स ऑन द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वर्ड यूज होता है. कंप्लीटिंग पेयर. So you have to complete the pairs. Pairs of analogy will be given and we are going to complete the remaining pair. जैसे कि dog is fog. So cat is to what? So क्या क्या है उन्होंने आपको ध्यान में आया होगा. FOG, second third letter as it is. So आप बोलोगे सर A और T as it is. अरे चारों ऑप्शंस में A और T देके रखा है, वो भी होशियार है. इतनी सिंपल एनोलॉजी पे वो नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पूरा डिकोड करना. So D is the fourth letter, F is the sixth letter. So +2 फॉर्मूला यूज किया है. So अगर C3 है तो +2, इसका मतलब हमें E डालना पड़ेगा. है क्या इट? यस, इट वर्ड इज ऑलरेडी गिवन. सो सेकंड थर्ड सेम रखा, लेकिन फर्स्ट में +2 का फॉर्मूला. सो दैट्स वाई कैट का रिलेशन आएगा इट के साथ. गेटिंग इट? सो इस तरह से आपको पेयर का एक वर्ड एक नंबर बाकी जो पूरा करना है. 945 11 is to what? सो आप बोलेंगे सर 9 5 45, सो 11 5 आना चाहिए 55. यस, 55 इज ऑलरेडी गिवन. ये भी सिंपल है. एनोलॉजी भी एक्चुअली सिंपलेस्ट चैप्टर में ही आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ कई जगह पे आपको जहां पे वर्ड्स है, यू मस्ट बी जनरली अवेयर ऑफ सर्टन. यस, कुछ एरियाज के नॉलेज अगर पता है, सो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑन एनोलॉजी. थर्ड एग्जांपल देखो, एडल्ट बेबी. सो आपको एडल्ट बनने से पहले स्टेज थी बेबी. सो फ्लावर बनने से पहले स्टेज थी, करेक्ट, बर्ड. फ्रूट तो बाद में, प्रीवियस वाली स्टेज है, प्रीसीडिंग स्टेज है. सो प्रीसीडिंग स्टेज ऑफ फ्लावर इज बर्ड. गेटिंग इट? एग्जांपल 4, 9 25, so 49 is to what? 9 is to 25, 49 is to what? So आप बोले सर ये तो हमें स्क्वायर दिख रहे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन कौन से नंबर्स के स्क्वायर है? इट्स अ स्क्वायर ऑफ ए 3, इट्स अ स्क्वायर ऑफ ए 5, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 7. ओ, ऑड नंबर्स. सो इसका मतलब अगला ऑड नंबर आना चाहिए 9, और 9 का स्क्वायर है 81.
यहाँ पे 8 का भी दिया है लेकिन 8 का नहीं आएगा, 3 इज ऑड नंबर, 4 स्किप करके 5 ऑड नंबर, 6 स्किप करके 7, सो 8 स्किप करके 9, 9 का स्क्वायर है 81, सो 81 कंपैरिजन में फिट है। क्लियर? इसका लास्ट एग्जांपल, व्हाइट पीस रेड, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, यस पॉइंट्स, जस्ट रिलेशन ढूंढना है, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट केस, चूजिंग पेयर, अभी आपको एक पेयर दी जाएगी, दूसरी पेयर आपको ढूंढनी है, जैसे कि देख, बॉक्सिंग रिंग, सो बॉक्सिंग इज प्लेड इन द रिंग, इन द सेम वे आपको एनालॉजी कंपैरिजन करना है, यस क्रिकेट इज प्लेड ऑन पिच नॉट ग्राउंड। क्लियर है? सो सेम यहाँ पे जो रिलेशन है वही रिलेशन नीचे कहां पे मैच हो रहा है, सो रिलेशन यहाँ पे मैच हो रहा है क्रिकेट और पिच का। गेटिंग इट? एग्जांपल नंबर 2, कोर्ट जस्टिस, सो आप बोलोगे सर क्या रिलेशन, यस व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए कोर्ट टू गिव जस्टिस, एग्जैक्टली आपको रिलेशन समझना जरूरी, जस्टिस देना ये कोर्ट की ड्यूटी है। इन द सेम वे क्या क्राइम देना पुलिस की ड्यूटी है? नहीं सर। क्या स्टडी करना टीचर की ड्यूटी है? तो स्टूडेंट की सर। सिकनेस नहीं, वो तो अच्छा करता है, सो यस सर। सो एक्यूरेसी की ड्यूटी है ऑडिटर की, सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ ए ऑडिटर, yes, to check the accuracy in the numbers and the documents and to prepare reports। अब बोले सर अभी एसपी मत जाओ। स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब बनाता है, वेरी गुड। इंक पेन बनाती है? नहीं। कॉक हेन बनाता है? नहीं। टीचर स्टूडेंट बनाते बनाते हाँ उनका करियर बनाते, हाँ कुछ बिगाड़ते वो अलग बात है। पोएट पोएट्री, सो स्पाइडर वेब पोएट पोएट्री, सो ये आउटपुट है, ये प्रोडक्ट है। सो हमेशा यू मस्ट थिंक इन रिलेशन कि क्या कौन बना रहा, डेफिनेटली स्पाइडर वेब बनाता है, पोएट पोएट्री बनाता है, टीचर स्टूडेंट की लाइफ बनाते, करियर बनाते। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। फोर्थ एग्जांपल, डेनिग्रेट डी वैल्यू, डेनिग्रेट डी वैल्यू सेम मीनिंग है, यस। अपग्रेड प्रमोट सेम मीनिंग, तो ये लग रहा है ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, इनका रिलेशन नहीं है, सो अपग्रेड और प्रमोट ये पेयर कंपैरिजन में परफेक्ट है। वन मोर एग्जांपल, बुद्धिस्ट पगोडा, ओके, बुद्धिस्ट गैदर टुगेदर इन पगोडा टू वर्शिप, एग्जैक्टली वर्शिप के लिए वो यहाँ पे आते हैं। सो क्रिश्चियंस क्रॉस नहीं, क्रिश्चियंस चर्च, जैन सन टेम्पल, उनकी जैन मंदिर होते सन टेम्पल्स में, ज्यूज सिनेगॉग, यस करेक्ट, Jews gather for worship in synagogue। Understood? नेक्स्ट केस, केस नंबर 4, ओ सेकंड लास्ट, 5वीं केसेस है एनालॉजी के। सो ये केसेस मैंने टॉपिक आसान हो जाए इसलिए केसेस करके रखी, डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस पे जंप करने से, ऐसा क्वेश्चंस अगर हम केसेस में डिवाइड करते तो ये आसान हो जाता। चूजिंग सिमिलर वर्ड्स, आपको सिमिलर वर्ड्स चूज करने, कैसे? लाइक दिस, ये 3 वर्ड एनालॉजी, ऑल दिस 3 बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, सो इसका 4th वर्ड आपको ढूंढना है। फोर्ट्रॉन, पास्कल, बेसिक, क्या है ये? फोर्ट्रॉन, पास्कल, बेसिक, ऑल आर यस कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक ही है, कोबाल, भोपाल कंप्यूटर और साइक्लोट्रॉन का कुछ भी रिलेशन नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है। सो ये सभी लैंग्वेजेस है, तो हमारा बेस क्या है नीचे, और कौन सी एक लैंग्वेज है, सो कॉल इज द लैंग्वेज। गेटिंग इट? एग्जांपल नंबर 2, आयरन, कॉपर, जिंक, क्या है सब? मेटल्स है, पक्का। सो नीचे कौन सा मेटल है? सिल्वर मेटल है, गुड, सिल्वर इज मेटल। ये तीनों मेटल से, तो नीचे वाला एग्जांपल भी मेटल का ही ढूंढना पड़ेगा। सो ये 3 वर्ड एनालॉजी है, 3 वर्ड्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, सेम कैटेगरी, और आपको 4th उसी कैटेगरी का ढूंढना है। जैसे कि भोपाल, पणजी, गांधीनगर। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, पणजी इज द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा, गांधीनगर गुजरात की है। सो नीचे दी हुई कौन सी कैपिटल सिटी है? यस, पटना, जो बिहार की है। गेटिंग इट?
फोर्थ एग्जांपल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल, ऑल आर क्रिकेटर्स। सो नीचे कौन सा क्रिकेटर है? ऋषभ पंत। क्या था, जल्दी जल्दी में लोग अनुष्का पसंद है तो अनुष्का क्लिक कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर हम राहुल गांधी के फैन हैं, हम राहुल गांधी लिखते हैं, बाकी बोले सर क्रिकेट जय शाह संभालता है तो वो लिखेंगे। ऑल आर क्रिकेटर, सो एक ही क्रिकेटर नीचे दिया हुआ है, ऋषभ पंत। दैट सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 121, 144, 169 क्या है? क्या है? 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। सो आप बोलोगे सर 14 का स्क्वायर आना चाहिए, और 14 का स्क्वायर है 196। ऑल आर स्क्वायर नंबर्स, नीचे कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, वो भी एक तरीका था, एक ही स्क्वायर नंबर है 196, बाकी स्क्वायर नंबर्स नहीं है। सो एनालॉजी कहती है एग्जांपल है। लास्ट केस बाकी है, चलो वो भी देख लेते क्या है लास्ट केस। 3 वर्ड्स या तो नंबर्स, 3 वर्ड्स या तो नंबर्स, नाम ही 3 वर्ड्स या तो नंबर्स है। इन तीनों में कुछ रिलेशन है, सेम रिलेशन नीचे दिए 3 में। पिछली बार हमने क्या देखा, 3 सेम फैमिली में, उसमें 4th डालना था। अभी डायरेक्टली यहाँ पे 3 नंबर्स में 3 वर्ड्स में कंपैरिजन है, सेम 3 नंबर्स है तो वर्ड्स में कंपैरिजन नीचे चाहिए। जैसे कि बस मूव्स ऑन द रोड एंड ऑफ कोर्स इट इज ड्राइवन बाय द ड्राइवर। सो इस तरह से कौन सा रिलेशन है? आप बोले सर ट्रेन ट्रैक पे चलती, लेकिन क्या ट्रेन को पैसेंजर्स चलाते? नहीं, सो ये पॉसिबल नहीं है। शिप वाटर पे चलती, लेकिन क्या उसको ड्राइवर चलाता है? नहीं सर। सर एरोप्लेन स्काई में मूव होता है, एग्री, क्या इसको पायलट चलाता है? यस सर, खत्म। बाकी 4th ऑप्शन क्या पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सो ये सेम रिलेशन नीचे है। सो व्हाट एवर रिलेशन इज इन 3 वर्ड्स, द सेम रिलेशन इज इन द ऑप्शंस के 3 वर्ड्स। सो 3 से 3 मैच करना है। और एक एग्जांपल देखते, डोंट वरी। फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग दीज वर्ड्स। अनदर ग्रुप, सेम है ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्नीचर, टेबल, अलमीरा। सिंपल है। कैसे? टेबल एंड अलमीरा आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्नीचर। क्लियर है? सो इसका मतलब अगर आपको वेन डायग्राम पता है, सो टेबल अलमीरा बोथ बिलोंग टू द फर्नीचर। सो फर्नीचर के फैमिली में दोनों आते हैं। सो कौन सा एग्जांपल है? बिल्डिंग, वॉल और ब्रिक? नहीं। फ्रूट, ऑरेंज, एप्पल? यस सर। ऑरेंज एंड एप्पल आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट। सो ये एनालॉजी, बाकी कुछ भी नहीं है एनालॉजी। क्लियर? मदर, फादर, सिस्टर, सी, रोड, सिटी? नहीं। ऑरेंज एंड एप्पल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स। एग्जांपल 3, 5 एग्जांपल्स देखने हर जगह पे, मैंने पहले आपको बता दिया था। बीच, डॉग और पपी। अब बोलोगे सर ये फीमेल है, ये मेल है, ये इनका कीड है, या तो ऑफस्प्रिंग है। क्लियर है? फीमेल, मेल और ऑफस्प्रिंग। फीमेल, मेल, लेकिन नहीं, उनका कब होता है। टाइगरेस फीमेल है, टाइगर, लेकिन उनका भी कब होता है। मेयर फीमेल है, हॉर्स मेल है, कोल्ड उनका ऑफस्प्रिंग है, ये तो करेक्ट है। गोट, शिप और हेन, ये तो कुछ भी रिलेशन है नहीं। गोट फीमेल है, लेकिन अफकोर्स यहाँ पे ही गोट था, उन्होंने डायरेक्ट शिप दे के रखी है। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज मेयर, हॉर्स एंड कोल्ट। ये 3 वर्ड्स मैच हो रहे हैं इस रिलेशन के साथ। गेटिंग इट? एग्जाम्पल 4, 6:12:18। आप बोलोगे सर 6 2s and 6 3s, 6 2s, 6 3s। सो 4 2s, लेकिन 4 3s नहीं है। 12 2s, 12 3s, यस। 6 2s भी नहीं और 32s भी नहीं। सो ओनली वन ऑप्शन इज देयर, 12, 24 एंड 36। लास्ट एग्जाम्पल, कुछ अलग है कि इसमें? चलो ढूंढो तो क्या है पैटर्न। 8 3s, 8 4s, ओके। 8 3s, 8 4s, देयर इज नो ऑप्शन। तो सो ये लॉजिक है ही नहीं। सो कौन सा लॉजिक है? डिफरेंस देखो फिर, अगर ये लॉजिक नहीं तो
आप बोलो सर डिफरेंस अगर देखना है तो डिफरेंस कितना है देखो ना। ओके, -8 -16 है क्या, कौन सी पेयर में देखो तो -8 -16। ओके, 24 -8 16, 16 -16 0, यस आ गया, यही है। सो -8 -16 का डिफरेंस उन्होंने मेंटेन किया, बस यही एक लॉजिक था। इस लॉजिक के बेसिस पे हमने एनालॉजी ढूंढ ली, 24 16 एंड 0 इक्वल टू द 32 24 एंड 8, सेम एनालॉजी पे वो जा रहे हैं। सो ये रही हमारी एनालॉजी टेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट है। आपको मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोल दिया था, इसके पहले हमने ऑलरेडी सिंपलेस्ट चैप्टर देखे हैं क्लासिफिकेशन के, वो सबसे आसान था। और एक आसान ये रहा हमारा एनालॉजी का। ये हमारी फ्यूचर बैचेस है। इफ यू नीड एनी गाइडेंस हेल्प, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्लास लगाने के लिए, इफ यू वांट एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटेड टू द स्टडी मटेरियल, अगर आपको बीबीए बीसीए कंफ्यूजन है, इफ यू वांट टू क्लियर दैट कंफ्यूजन, if you want to know, if you are in Nasik, if you want any guidance, you can directly come at our office, Gore Colony, Ashok Stambh, Nasik. So see you in the next video with the next topic. Tab tak bye bye, take care.